Welcome and good morning to all. In today's lecture on the introduction, classification, and the IPAC naming of the alkanes. So first of all, we will discuss about the hydrocarbons. Means hydrocarbon क्या होते हैं? As the name suggests, hydrocarbon has two words. One is the hydro, means hydrogen. Other one is the carbons, means carbon. Means ऐसा compound जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने, आप उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे. Means the compounds which contain carbon and hydrogen only are called as hydrocarbons. What are the different types of hydrocarbons? Hydrocarbon may be of following types. The hydrocarbon may be the saturated hydrocarbons or the unsaturated hydrocarbons. Saturated means there is only single bond in between the C and C atom. Such type of hydrocarbons are called as सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, आप उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे. For example, alkanes. In the alkane, there are two words. One is the alk, other one is the ane. Alk means number of carbon atoms, and ane means there is a single bond in between the C and C atom. So alkanes are the saturated hydrocarbons. Alkanes are generally called as the paraffins. Para means little, affinis means reactivity. These alkanes have very low reactivity. Why they have the low reactivity? इनकी low reactivity क्यों होती है? Because they have no reactive site. No reactive site means there is no double bond in their structure, there is no triple bond in their structure, there are no functional group because they contain only carbon and hydrogen along only with the single bond in between the C and C atom. इसीलिए जो alkanes हैं इनकी reactivity बहुत ही कम होती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिएक्टिव साइट नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड मींस देयर इज समथिंग डबल और द ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम. तो ऐसे कंपाउंड्स को आप कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन डबल और द ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन द C and C atom in the carbon atom chain are called as unsaturated hydrocarbons, and these unsaturated hydrocarbons may be the alkenes or alkynes. Alkenes are those unsaturated hydrocarbons in which there is a double bond in between the carbon and carbon atom. Alk means number of carbon atom. ene means there is a double bond in between the C and C atom. So alkene and alkynes are the example of unsaturated hydrocarbons. Similarly, alkynes are also the unsaturated hydrocarbons. Here also the word alk. Alk means number of carbon atom. Yne means there is a triple bond in between carbon and carbon atom. These both are the unsaturated hydrocarbons. Alkenes are also called as olefins. Why they called as olefins? इनको हम olefins क्यों कहते हैं? Because the lower member of the alkenes have the tendency to form oily liquid on reaction with the chlorine gas. जो आपके lower members हैं alkene के, जब ये chlorine gas के साथ reaction करते हैं, they give the oily liquid. Because of that reason, they called as olefins. Alkynes are also called as acetylenes. Alkynes को हम acetylenes कहते हैं क्योंकि जो first member है alkyne series का वो आपका कौन है? That is the acetylene C2H2, जिसे आप इथाइन भी कहते हैं. इथाइन is the IUPAC name and the acetylene is the common name of C2H2. So that is the first member of alkyne series. So alkynes are also called as acetylenes. जो आपके alkenes होते हैं they are more reactive than alkanes. Why? Because जैसे हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि alkanes की लो रिएक्टिविटी होती है जिसकी वजह से alkanes को हम पैराफिन्स कहते हैं. लो रिएक्टिविटी वाले कंपाउंड्स होते हैं आपके alkanes. तो alkene रिएक्टिव क्यों हो गए? Because they have the reactive site. एल्कीन्स के अंदर रिएक्टिव साइट होती है. कहां पे है रिएक्टिव साइट? क्योंकि एल्कीन्स के अंदर जो कार्बन एटम की जो चेन है उसके अंदर क्या आ गया? डबल बॉन्ड. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड द एल्कीन्स आर रिएक्टिव इन नेचर. They are more reactive than the alkanes. Similarly, these alkynes are also more reactive than the alkanes क्योंकि जो alkynes है उसके अंदर भी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? ट्रिपल बॉन्ड. So due to the presence of the triple bond in between the carbon and carbon atom, alkynes are also more reactive than the alkanes.
नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कि आपके एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी टाइप क्या हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, वो आपके अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन थे आपके, इन विच देयर इज ए सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, दिस कॉल्ड एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल क्या थे उनके, एल्केन्स। सो नाउ व्हाट आर एल्केन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्केन्स? तो alkanes are those compound which contain a single bond in between C and C atom and have the general formula CnH2n plus 2 are called as alkanes. वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर आपको क्या दिखाई दे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और जनरल फार्मूला क्या हो जिनका, CnH2n plus 2 मींस कार्बन कितने हैं, n। अगर कार्बन की संख्या n है, कार्बन का नंबर n है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n plus 2। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। आप बताएं इन जनरल इन एनी ऑफ द एल्केन, किसी भी एल्केन के अंदर अगर कार्बन n है तो बताएं हाइड्रोजन कितने होंगे। तो आप आंसर लिखेंगे हाइड्रोजन होंगे 2n plus 2। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे जो डिफरेंट एल्केन्स हैं, लोअर मेंबर टू हायर मेंबर्स, वो कौन कौन है। अगर हम इस फार्मूले में जो जनरल फार्मूला है आपके एल्केन्स का CnH2n plus 2, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 हियर, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई कंपाउंड बन जाए। तो अगर हम देखो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दे जनरल फार्मूले में, n की जगह 1, तो बोलो क्या आंसर बना, CH4। बोलो क्या बन गया आपका, CH4। क्या CH4 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपके जो CH4 है उसमें कार्बन है और 4 कौन अटैच है उससे, हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4। तो इसीलिए जो मीथेन है, CH4 जो कंपाउंड है, इट इज पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मल वैलेंसी है हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है और कार्बन की भी नॉर्मल वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज इज मीथेन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्श गैस। आप इसे मार्श गैस कहते हैं। आपने देखा अभी स्ट्रक्चर के अंदर देखो, देयर इज अ सेंट्रल एटम, दैट इज द कार्बन, while the neighboring atoms here are हाइड्रोजन। नेबरिंग एटम हाइड्रोजन है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन का अपना एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बड़ी आराम से पता चला सकते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी होती है। इन जनरल मैंने आपको काफी बार भी बताया है कि आप एक चीज को जरूर ध्यान रखें, 4 एटम्स आपको याद रखने जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, मींस ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है 3। और आपके कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, वो आपके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दीज आर दी वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट एटम्स, 1 2 3 4। आपको ये चारों बातें ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं जो मार्श गैस है इटसेल्फ, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द नेचर, नेचर के अंदर भी अपने आप प्रोड्यूस होती रहती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है मीथेन। जो मार्शी एरियाज होते हैं, देखो जो दलदली इलाके हैं, यहाँ पे आपके अपने आप ही बोलो कौन सी प्रोड्यूस होती रहती है गैस, मार्श गैस, दैट इज द मीथेन गैस। आप लेफ्ट साइड के डायग्राम में दिख रहे हैं आपको, जो बबल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो डीप, जो गहरा समुद्र है वहां पे आपको दिख रहा है। वहां पे जब डिकम्पोजिशन होती है तो वहां पे भी आपकी कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, आपको जो दिख रही है, दैट इज द मार्श गैस। मार्श गैस कौन सी गैस को कहते हैं, मीथेन गैस को कहते हैं। नेक्स्ट मेंबर ऑफ दैट सीरीज, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो बोलो क्या आएगा, C2H6, दैट इज द इथेन। और ये इसकी स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन के बीच आप सिंगल बॉन्ड बने और रिमेनिंग वैलेंसी कार्बन की किससे पूरी कर दें, हाइड्रोजन से। तो हर एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाया तो कार्बन का एक बॉन्ड पूरा हो गया, कार्बन के 3 बॉन्ड बच गए, तो हर एक कार्बन के ऊपर आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए तो कंप्लीट बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और इकट्ठा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहें तो C2H6। और जो ये दो मेंबर हैं मीथेन और इथेन, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द CH2 यूनिट। इन दोनों के फार्मूले में डिफरेंस देखिए क्या है। देखो मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4, इथेन का फार्मूला क्या है, C2H6। इथेन में कितने कार्बन ज्यादा हो गए, 1, कितने हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, 2, मींस दे डिफर बाय CH2 यूनिट। और द मास कितना हो गया, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो 14 मास का डिफरेंस होता है। बोलो मीथेन और इथेन के बीच व्हाट्स द डिफरेंस, दे डिफर बाय CH2 यूनिट एंड दे आल्सो डिफर बाय द मास ऑफ 40 U, 40 AMU से ये डिफर भी करते हैं। Now the next member of the alkane series is propane. If we put the value of n is equal to 3 in the general formula, that is the CnH2n plus 2. So what's the formula of the propane here? The molecular formula of the propane is C3H8.
और स्ट्रक्चर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मींस आप 3 कार्बन को एक लाइन में लगा दें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसे 3 कार्बन को उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दें, और उसके बाद आप क्या करें, बची वैलेंसी पूरी कर दें कार्बन की। कैसे पूरी करें, कार्बन के 4 होती है वैलेंसी, जितने बॉन्ड कम है उतने ही क्या लगा दो, H। तो इस तरीके से आपने जो एंड वाले कार्बन है उसके ऊपर आपने देखा CH3 बन गया, क्योंकि उस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा था, 3 H लगा दिए। जो मिड वाला कार्बन है उसके दोनों साइड में कार्बन थे, 2 बॉन्ड तो कार्बन के पहले से हो गए, और इसीलिए हमने उसके ऊपर कितने H लगाए, सिर्फ 2 H लगाए, CH2 आपका बन गया। अब इथेन और प्रोपेन भी किस चीज में आपस में डिफर कर रहे हैं, दे डिफर बाय CH2 यूनिट। मास कितना, 14 AMU से ये डिफर कर रहे हैं आपस में। नेक्स्ट मेंबर इज द ब्यूटेन। आपके जो LPG गैस होती है उसके अंदर कौन से 2 हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन्स के, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब जो ब्यूटेन है आप इसको देखें, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, बोलो C4H10। जो जनरल फार्मूला आपका CnH2n+2, उसमें अगर n की वैल्यू 4 पुट करें तो बोलो क्या आ जाएगा, C4 और H10। और नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 5 पुट कर दें तो बोलो फार्मूला क्या बनेगा, C5H12। आप उसे पेंटेन कहेंगे। नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 6 पुट कर दें तो C6H14। तो क्या बन गया, हेक्सेन। Hex means number of carbon atom are 6. So hex, there is a single bond in the carbon-carbon atom chain. So ANE, so called the hexane. All these member differ from each other. All these member, first member second से CH2 यूनिट से डिफर करेगा, सेकंड वाला थर्ड से, CH2 यूनिट से, एंड सो ऑन। तो इसे कहते हैं आप होमोलोगस सीरीज। जो ये सीरीज बन गई आप इसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। कैसी सीरीज है ये किस चीज में डिफर कर रहे हैं आपके सक्सीडिंग मेंबर एक दूसरे से। द सीरीज in which the different members differs from each other, every succeeding member differs from the previous one by the CH2 unit। मीथेन इथेन से CH2 यूनिट से डिफर करेगा, और कितने मास से डिफर करेगा, 14 AMU से। तो ऐसी सीरीज को आप कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो द सीरीज इन विच the different members have different physical properties and they differs from each other and they differ from the succeeding member by the CH2 unit or by mass of 14 AMU is called as the homologous series। देखो ये जो homologous series होती है ये सिर्फ एल्केन में नहीं होती, ये सीरीज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हर एक के अंदर होती है। एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, आप जिस भी चीज को रीड आउट करेंगे पढ़ेंगे उन हर एक के अंदर ही अपनी खुद की एक सीरीज होती है, और आप उस सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और उस हर एक सीरीज के अंदर जो कोई भी मेंबर है वो अपने सक्सीडिंग मेंबर से या प्रीसीडिंग मेंबर से किस चीज में डिफर करेगा, बाय CH2 यूनिट से डिफर करेगा। कितने मास से डिफर करेगा, 14 AMU के मास से डिफर करेगा। और जो ये डिफरेंट आपके जो मेंबर्स होते हैं, दीज ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज कॉल्ड एज होमोल्यूग्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एज द होमोलॉजी। और जो ये एल्केन सीरीज है, जैसे आपने ये हमने आपको बता ही दिया, एल्केन सीरीज में बोलो कौन आया फर्स्ट मेंबर, कौन आपसे पूछ रहे एग्जाम में, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन्स। एल्केन की डिफरेंट टाइप क्या क्या हो सकती हैं, जैसे फर्स्ट वन एन एल्केन हो सकते हैं, आइसो एल्केन हो सकते हैं, न्यू एन के एल्केन्स हो सकते हैं। सो व्हाट आर दीज एन एल्केन्स, आइसो एल्केन और द न्यू एल्केन्स। एन एल्केन्स मींस ऑल द कार्बन एटम in a chain are present in the state chain, all carbon atom are present in the state chain। अगर सारे के सारे कार्बन एटम एक स्टेट चेन के अंदर प्रेजेंट हो तो आप ऐसे एल्केन को कहते हैं एन एल्केन्स। तो द स्टेट चेन एल्केन्स आर कॉल्ड एज एन एल्केन्स। आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे एन पेंटेन, आपने इसमें देखा ऑल द 5 कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द चेन, आर प्रेजेंट इन द स्टेट चेन। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी आपके कार्बन एटम की चेन होती है उसको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम जिगजैग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज इफ वी ड्रा ए स्ट्रेट लाइन, देखो हम यहाँ पे एक लाइन देखो आपके सामने ड्रा कर देते हैं, क्या आप इसमें ये बता सकते हैं कि इसके अंदर बताओ टोटल कार्बन एटम कितने, अगर हम आपसे पूछें आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब हम जिगजैग फॉर्म में देखो ऐसे ड्रा कर दें जिगजैग फॉर्म में, तो अब आप बता देंगे इसमें टोटल कितने कार्बन है। क्यों, कैसे बताएंगे, बिकॉज द एवरी पॉइंट, देखो फर्स्ट पॉइंट एंड एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट, देखो ये सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये आपका एंड पॉइंट। एंड पॉइंट और द इंटरसेक्शन पॉइंट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम। अब जैसे इसमें हमें पता चल गया, जो नीचे मैंने अभी ड्रा किया कि देयर आर टोटल, देखो मैंने टोटल 5 पॉइंट्स लगाए हैं, तो 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो बोलो कौन हो गया, ये पेंटेन है। और स्टेट चेन में है तो सो कॉल्ड एज द एन पेंटेन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे जब कभी भी हम, जब भी एल्केन को हम ड्रा करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी हो,
प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो हमेशा ही उस चेन को हम कैसे ड्रा करेंगे, इन द जिगजैग वे, ताकि हमें पता चल जाए उस चेन के अंदर टोटल कार्बन एटम कितने हैं। तो इन चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, व्हाट आर आइसोएल्केन्स। तो आइसोएल्केन कौन होंगे? आइसोएल्केन्स आर दोज एल्केन इन विच one CH3 group is present at C2 position of the carbon atom chain। कार्बन एटम की देखो कोई चेन है, ये आपकी देखो हमने नंबरिंग भी कर दी इसमें 1 2 3 4, और इसमें जो C2 पोजीशन है उसके ऊपर देखो हमने क्या लगा दिया, एक CH3 ग्रुप लगा दिया। नाउ दैट कॉल्ड द आइसोएल्केन। और अब यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, ये कॉमन नेमिंग होती है। तो टोटल कार्बन तो कितने बोलो इस कंपाउंड के अंदर 5 हैं, लेकिन C2 के ऊपर एक CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज द आइसोपेंटेन। सो दैट इज द कॉमन नेम। नेक्स्ट, व्हाट आर नियो एल्केन्स। नियो एल्केन्स कौन होंगे आपके? नियो एल्केन्स आर दोज एल्केन इन विच 2 CH3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इन विच 2 CH3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द C2 पोजीशन। अब देखें ये कार्बन एटम की चेन है, देखो 1 2 3, देखो C2 पोजीशन के ऊपर देखो, एक तो हमने रेड कलर से दिखाया CH3, एक मैंने ब्लू कलर से देखो दिखाया CH3। दीज 2 CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट एट द C2 पोजीशन। तो हमने क्या बताया आपको, द एल्केन्स इन विच द 2 CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट एट द C2 पोजीशन आर कॉल्ड एज द न्यू एल्केन। आप उसे न्यू एल्केन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे द टाइप ऑफ द कार्बन एटम इन द एल्केन्स। एल्केन के अंदर जो कार्बन एटम होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो द कार्बन एटम में भी द प्राइमरी कार्बन एटम, में भी द सेकेंडरी, टर्शियरी और द क्वाटरनरी कार्बन एटम। कार्बन एटम आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और द क्वाटरनरी। एज द नेम सजेस्ट, सीधा नेम ही बताता है कि the carbon atom which is further linked either with one or no carbon atom are called as the primary carbon atom। कोई एक कार्बन या तो एक और कार्बन से अटैच हो तो प्राइमरी है, किसी एक भी कार्बन से अटैच नहीं तो भी वो प्राइमरी कार्बन एटम है। कोई आपसे ये पूछे फॉर एग्जांपल मीथेन, मान लीजिए मैं मीथेन की स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं आपके सामने, ये कार्बन और उसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया बोलो, यहाँ पे देखो इस टाइप से CH4। अब बताओ ये जो कार्बन है कैसा है? इट इज प्राइमरी कार्बन। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है ये किसी और कार्बन से अटैच नहीं है। तो मीथेन के अंदर बोलो कौन सा कार्बन होता है? मीथेन के अंदर होता है प्राइमरी कार्बन एटम। अब मैं ड्रा कर देता हूं आपके सामने इथेन की स्ट्रक्चर, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप इसमें बताएं कितने टाइप के कार्बन है, क्या इसमें कोई प्राइमरी कार्बन है? यस, दोनों के दोनों कार्बन आपके प्राइमरी कार्बन एटम है। क्यों? क्योंकि जो ये कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला CH3, ये दोनों CH3 आपस में एक ही कार्बन से तो अटैच हैं। सो बोथ आर दी प्राइमरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन एटम वो होता है जो या तो एक कार्बन से अटैच हो या एक से भी ना हो तो भी आप उसे प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। अब हम ये एग्जांपल ले लेंगे, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द कार्बन इज द प्राइमरी कार्बन। तो अब देखें जो कार्बन एटम नंबर 1, जो नंबरिंग हमने कर रखी है 1 2 3 4 5, कार्बन एटम जो नंबर जो 1 है वो एक प्राइमरी कार्बन है। व्हाई इट इज द प्राइमरी कार्बन एटम? बिकॉज इट इज अटैच्ड विद वन कार्बन एटम। C1 वाला कार्बन एक C2 वाले कार्बन से ही अटैच है, तो इसलिए बोलो कौन हो गया ये प्राइमरी कार्बन एटम। और बताएं नेक्स्ट, देखो ये C4 वाले जो CH3 है यहाँ पे ये जो अटैच है, बोलो ये कितने कार्बन से अटैच है? ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसीलिए बोलो कौन हो गया ये CH3 एक C4 कार्बन से अटैच है, सो इट इज द प्राइमरी। उसके बाद देखो C5 वाला जो कार्बन है ये किससे अटैच है? C4 वाले से अटैच है, तो ये भी बोलो कौन हो गया एक प्राइमरी कार्बन एटम। उसके बाद ये देखे ये जो CH3 है जो C4 के ऊपर ऊपर की साइड में जो हमने अटैच कर रखा है, इट इज ऑल्सो द प्राइमरी। बोलो क्यों? क्योंकि ये CH3 वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, वो जिस कार्बन से अटैच है वो कौन है? वो C4 वाला कार्बन है। और ढूंढे आप, हाँ ये रहा जो ये जो CH3, बोलो ये CH3 किससे अटैच है? ये C2 वाले कार्बन से जो अटैच है CH3, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है। तो आपने देखा इस कंपाउंड के अंदर जो टोटल प्राइमरी कार्बन एटम है बताओ वो कितने हैं? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 प्राइमरी कार्बन एटम। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी स्ट्रक्चर ड्रा करके दे दें और आपसे कह दें कि बताओ इसमें टोटल प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं, तो बोलो इसमें कितने हो गए? देयर आर टोटल 5 प्राइमरी कार्बन एटम। बोलो इथेन में प्राइमरी कार्बन एटम कितने थे? आपने देखा था इथेन के अंदर 2 प्राइमरी कार्बन एटम थे। मीथेन में कितने प्राइमरी कार्बन एटम थे? मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की थी लेफ्ट साइड में, बताओ इसके अंदर एक ही प्राइमरी कार्बन एटम है। मीथेन के अंदर बोलो कितने थे आपके? एक ही प्राइमरी कार्बन एटम है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज द सेकेंडरी कार्बन एटम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेकेंडरी कार्बन एटम? सेकेंडरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम होते हैं विच आर फर्दर लिंक्ड विद 2 मोर कार्बन एटम। सो द कार्बन एटम विच इज फर्दर लिंक्ड विद 2 मोर कार्बन एटम आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम। तो बताएं इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या कोई सेकेंडरी कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है? तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो देखो ये रहा यहाँ पे, बोलो कौन सा? C3 कार्बन।
जो C3 वाला कार्बन है, ये जो CH2 हमने लिख रखा है, बोलो ये कितने कार्बन से अटैच है? ये राइट और लेफ्ट दो कार्बन से अटैच है। ये C3 वाला कार्बन लेफ्ट साइड में C2 से अटैच है और राइट साइड में C4 से अटैच है। सो इट इज द सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या कोई और है? नहीं, और नहीं है। अब हम चलते हैं टर्शियरी कार्बन एटम की तरफ। So how will you define the tertiary carbon atom? The carbon atom which is further linked with 3 more carbon atom is called as the tertiary carbon atom. अगर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन से अटैच हो जाए तो आप उससे कहते हैं टर्शियरी कार्बन एटम। तो इस कंपाउंड में सर्च आउट करें, क्या कोई टर्शियरी कार्बन एटम है? देखिए बड़े ध्यान से, ये रहा C2 कार्बन। जो C2 वाला कार्बन है, बोलो ये कितने कार्बन से अटैच है? ये 3 कार्बन से अटैच है। देखो ये CH3, ये इधर से CH3 और एक इधर से, ये देखो CH2 वाला। तो जो C2 कार्बन है, इट इज अटैच्ड विद 3 मोर कार्बन एटम, सो इट इज द टर्शियरी कार्बन एटम। बोलो कैसा कार्बन हो गया? सो इट इज द टर्शियरी कार्बन एटम। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम की। सो व्हाट इज द क्वाटरनरी कार्बन एटम? अब तो आप समझ गए होंगे। द कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर लिंक्ड विद 4 मोर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज द क्वाटरनरी कार्बन एटम। बोलो वो कौन सा कार्बन आपको दिख रहा है? दैट इज द C4 कार्बन। जो पोजीशन नंबर 4 वाला कार्बन है, ये 4 कार्बन से अटैच है। देखो 1 CH3 से अटैच, ये सेकंड CH3 से, ये थर्ड CH3 से, और इधर देखो CH2 वाले कार्बन से अटैच है। तो जो C4 कार्बन है, इट इज द क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो इस टाइप से आपने देखा जो कार्बन एटम है एल्केन के अंदर, जो आपने देखा वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो कार्बन एटम में भी द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और द क्वाटरनरी कार्बन एटम। और इस टाइप से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर दे दे और कह दे बताओ उस कंपाउंड के अंदर टोटल कितने कार्बन एटम है। तो इस टाइप से आपको इस तरह से क्वेश्चन का जवाब देना होगा। नेक्स्ट आ जाता है एल्काइल किसे कहते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एल्काइल? जो भी आपका कोई भी एल्केन है, एनी एल्केन, आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन, उसमें आप क्या करें, एक एच हटा दें। द रिमेनिंग ग्रुप कॉल्ड एज द, बोलो क्या आपका? एल्काइल ग्रुप। क्या कहेंगे आप उसे? एल्काइल ग्रुप। मींस जो आपका एल्केन है, एल्केन था, एल्क प्लस में एन एल्केन, आपने क्या किया, उसमें से कोई एक एच हटा दो। जो एच हटाने के बाद जो रिमेनिंग ग्रुप होता है, दैट कॉल्ड एज द एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन में जो CH4 है, आपने क्या किया, उसमें से एक एच हटा दिया, क्या बच गया? CH3 बच गया। तो देखो ये जो सिंगल बॉन्ड भी हमने दिखा रखा है, दैट इज द रिमेनिंग वैलेंसी। अभी ये बचा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप और आके अटैच हो जाएगा अभी, क्योंकि हमने एच यहाँ से हटा दिया। सो कॉल्ड एज मिथ प्लस YLE। तो मिथेन का मिथ प्लस में ANE का ANE हटा के हम वहां पे YL लगा देंगे, सो कॉल्ड एज मिथाइल। सिमिलरली अगर हम एक एच और हटा दे मिथाइल के अंदर से, जो CH3 बना अभी मिथाइल, अगर हम एक एच और हटा दे तो क्या होगा? देखो CH2 बच जाएगा, दो बॉन्ड, दो वैलेंसी खाली रहेगी। देखो ये जो दो लाइन हमने लगा रखी है, इसका मतलब क्या है? देखो ये वन बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड, टू वैलेंसी अभी खाली हो गई, क्योंकि दो एच हमने यहां से हटा दिए। सो दैट कॉल्ड नाउ हियर द मिथाइलिन। आप इस ग्रुप को बोलो अब क्या कहेंगे? मिथाइलिन। बोलो CH3 ग्रुप को आप क्या कहते हैं हमेशा? मिथाइल। CH2 ग्रुप को आप क्या कहेंगे? CH2 को मिथाइलिन ग्रुप। तो एग्जाम में कई बार ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि CH3, व्हाट CH3 कॉल्ड, आप आंसर लिखेंगे मिथाइल। व्हाट CH2 कॉल्ड, आप कहेंगे मिथाइलिन ग्रुप। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आपके पास देखो हमने इथेन की स्ट्रक्चर ली, उसमें बोलो हमने क्या रिमूव कर दिया? एच हमने रिमूव किया। एच रिमूव करते ही साथ जो ग्रुप बच गया वो कौन है? CH3 सिंगल बॉन्ड। CH2 के आगे देखो हमने ये बॉन्ड खाली दिखा दिया। नाउ इट इज कॉल्ड इथाइल। क्या कहेंगे आप इसे? इथाइल। तो इथेन का ANE को आप हटा देंगे और वहां पे YL लगा देंगे, सो नाउ इट इज ए ग्रुप। अब ये ग्रुप का काम करता है। आप नीचे देखें, इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अभी हमने बताया था ना आपके डिफरेंट टाइप के एल्केन थे, एन एल्केन, आइसो एल्केन, न्यू एल्केन। तो बताओ आपके ये कौन सा ग्रुप है? देखो C2 पोजीशन के ऊपर बोलो क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एक CH3 ग्रुप। ध्यान से देखें, देखो ये जो चेन है 1 2, इसके अंदर C2 पोजीशन के ऊपर एक CH3 है, सो इट इज द आइसो ग्रुप। आइसो वर्ड यूज करेंगे। टोटल कार्बन 3 है, तो क्या कहेंगे? आइसोप्रोपेन बन गया। आइसोप्रोपेन में वो जो C2 पोजीशन थी, उस C2 के ऊपर से एक H हटा दिया। नाउ इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। बोलो क्या कहेंगे इसे? आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ बड़े ध्यान से देखें, वो जो कार्बन है जिसकी वैलेंसी खाली है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक CH3 से ऊपर अटैच, एक CH3 से नीचे। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। देखो यही जो सेम एग्जांपल है, इसके अंदर दो बातें आ गई कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी है और ये आपका सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप भी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अब इसमें बताएं आप। ये भी आपका देखो C2 जो पोजीशन है इसमें 1 2 3, देखो C2 पोजीशन के ऊपर एक CH3 ग्रुप अटैच है, सो इट इज द आइसो ग्रुप। बोलो कौन सा ग्रुप है? ये आपका एक आइसो ग्रुप है। और ये आइसो ग्रुप हो गया आपका। लेकिन टोटल कार्बन बोलो टोटल कितने हैं? 4 कार्बन है यहाँ पे। 4 कार्बन हो तो आप इसे क्या कहते हैं? बोलो
आप इसे कहते हैं ब्यूट, तो ब्यूट कह देंगे आप इसको प्लस, लेकिन साथ के साथ ब्यूट के साथ साथ ये और क्या बन गया बोलो आपका, ये आपका बन गया आइसोब्यूटाइल। बोलो क्या बन गया आपका, आइसोब्यूटाइल। लेकिन एक चीज और, आप ये देखें वो कार्बन जिसकी वैलेंसी अभी खाली है, वो कार्बन जिसके ऊपर से हमने H हटा दिया, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, देखो ये C3 वाला ये कार्बन, बोलो कितने कार्बन से अटैच है, ये तो एक ही इसी कार्बन से अटैच है। सो इट इज द प्राइमरी कार्बन। बोलो कैसा है, प्राइमरी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी आइसोब्यूटाइल ग्रुप, या प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप आप सिंपली कह देंगे। ये आइसोब्यूटाइल भी है और प्राइमरी ब्यूटाइल भी है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। अब इस नेक्स्ट में बताएं बोलो क्या है, वो कार्बन जिसकी वैलेंसी खाली है, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसलिए प्राइमरी हो गया। टोटल कार्बन गिने कितने हैं, टोटल है 5 कार्बन, सो कॉल्ड एज प्राइमरी पेंटाइल ग्रुप है। बोलो कौन सा ग्रुप है ये, प्राइमरी पेंटाइल ग्रुप। पहली चीज। दूसरी चीज देखें, C2 पोजीशन के ऊपर बोलो क्या अटैच है, CH3 ग्रुप, तो आइसो ग्रुप भी हो गया इसमें। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोपेंटाइल ग्रुप। इसके दो दो नाम का आपका पता चल गया, सेम ग्रुप है, इसको आप आइसोपेंटाइल भी कहेंगे, आप इसको प्राइमरी पेंटाइल भी कहेंगे, लेकिन एक कॉमन नाम और भी है जिससे इसको जाना जाता है, दैट इज द आइसोएमाइल ग्रुप। आप इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला एग्जांपल। आप इसको फिर से देखें, वो कार्बन जिसके ऊपर से हमने H हटाया है, वो बोलो कौन है, ये C3 पोजीशन वाला, देखो ये। अब इसके ऊपर आप देखें ये कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है। सो इट इज द प्राइमरी ग्रुप। बोलो कैसा है ये, प्राइमरी। टोटल कार्बन गिनो कितने, 5 है इसके अंदर, 1 2 3 4 5। सो इट इज द प्राइमरी पेंटाइल ग्रुप। प्लस एक चीज और देखें, जो C2 पोजीशन है उसके ऊपर कितने CH3 ग्रुप अटैच हैं, देखो 1 1 2। C2 पोजीशन के ऊपर दो दो CH3 ग्रुप अटैच है, तो बोलो कौन सा ग्रुप होता है, वो नियो होते हैं। सो दैट कॉल्ड एज द, बोलो क्या, नियो पेंटाइल ग्रुप, दैट इज द नियो पेंटाइल ग्रुप। नेक्स्ट आप देखें, अब इसमें देखें वो कार्बन जिसके ऊपर से H हटा है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, देखो एक से ही अटैच है ये तो। सो इट इज द प्राइमरी। बोलो कौन हो गया ये आपका, प्राइमरी हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 है इसमें, तो प्राइमरी हेक्साइल कहेंगे। नीचे आप करेक्शन कर लेंगे सभी, प्राइमरी पेंटाइल नहीं, ये बोलो कौन हो गया, प्राइमरी हेक्साइल हो गया, प्राइमरी हेक्साइल। अब उसके बाद देखें, जो C2 कार्बन है उसके ऊपर कितने CH3 अटैच हैं, देयर आर 2 CH3, देखो 2 CH3 हैं, तो इसलिए क्या बन गया, C2 पोजीशन पे 2 CH3 हो तो क्या कहते हैं, नियो। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज नियो हेक्साइल ग्रुप। तो इस टाइप से आपको ये डिफरेंट ग्रुप्स के नामों का पता होना जरूरी है। लास्ट वाले को देख लो, ये कार्बन जिसके ऊपर से H हटाया है, जिसकी वैलेंसी खाली है, अब ये देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, देखो 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलो हेयर, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट हो गया। और वो कार्बन जिसके ऊपर से H हटा, जिसकी वैलेंसी खाली है, वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच था, तो इसलिए टर्शियरी कार्बन हो गया। तो सो इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। बोलो कौन सा ग्रुप है ये, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन्स। हम नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, आईपैक नेमिंग कैसे लिखेंगे एल्केन्स की। देखो जो कोई भी, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं उसके बेसिक 5 ही पार्ट होते हैं आईपैक नेमिंग के दौरान। बोलो फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट मींस इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या ढूंढते हैं, आईपैक नेमिंग में आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन having the double bond, triple bond or the functional group is called as the principal chain। और उस प्रिंसिपल चेन के अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन, वो लंबी से लंबी चेन, आपको ये नहीं है कि सबसे लंबी देख लो, नो, वो लंबी से लंबी चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए, अगर है तो, उस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड है तो जरूर आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी उस चेन का पार्ट बन जाए। तो वो लंबी से लंबी चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आप उसको कहते हैं प्रिंसिपल चेन। अब उस चेन के अंदर अब कितने हैं कार्बन, आप उसको कहते हैं वर्ड रूट। बोलो वो क्या बन गया, वर्ड रूट। सो दैट इज द नंबर 1 पॉइंट जो आपको आईपैक नेमिंग में ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी सफिक्स। अब आपको ये देखना है जो प्रिंसिपल चेन आपने ढूंढ ली, उस प्रिंसिपल चेन के अंदर क्या कोई सिंगल बॉन्ड ही है, या डबल बॉन्ड तो नहीं आ गया, या कोई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, मींस वेदर देयर इज ओनली द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रिंसिपल चेन। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो आपका कहलाएगा प्राइमरी सफिक्स। मींस वर्ड रूट का मतलब आप वर्ड यूज करते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड सो ऑन। मींस प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन थे उसके बेसिस के ऊपर आप मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट वर्ड यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स मींस मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट के आगे जो आप ANE, ENE या YNE लगाते हैं वो प्राइमरी सफिक्स होता है। वो कौन होता है आपका प्राइमरी सफिक्स।
उसके बाद नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स, अगर आपके जो कंपाउंड है उसमें कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, अगर कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन ये होती है सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल एल्कोहलिक ग्रुप आ गया तो OH आ गया, तो उसके लिए OL वर्ड यूज करते हैं, ओल, तो ओल लिख देंगे आप, जैसे मिथ, इन, ओल ऐसे आप लिख देते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स कहलाते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अब वर्ड रूट से पहले आप क्या लगाते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। मींस आपके पास मान लीजिए कोई कंपाउंड गिवन था, आपने देखा उसमें आपने क्या ढूंढा? प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट कार्बोनेटम चेन। जो लंबी चेन है वो साइक्लिक चेन तो नहीं, वो रिंग की फॉर्म में तो नहीं। अगर प्रिंसिपल चेन आपकी रिंग की फॉर्म में है तो आप वर्ड रूट से पहले साइक्लो वर्ड लगा देंगे। अगर वो रिंग की फॉर्म में नहीं है, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, वो सीधी कार्बोनेटम की चेन है, तो आप क्या कर वर्ड यूज करें? आप वर्ड यूज नहीं लगाएंगे, आप साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। बोलो प्राइमरी जो प्रीफिक्स है ये कब यूज होता है? वो ये सिर्फ तभी यूज होता है जब आपकी जो प्रिंसिपल चेन है वो साइक्लिक हो। कैसी हो वो आपकी? साइक्लिक। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो प्रिंसिपल चेन है, जो लॉन्गेस्ट कार्बोनेटम चेन है, उसके ऊपर जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, और कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप, कोई अमीनो ग्रुप लग गया, कोई दूसरा लग गया, मींस ऑल सच टाइप ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रीफिक्स, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अबाउट द ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स, इट टेल अबाउट ऑल द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। देखो किसी भी कंपाउंड में मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है, तो उन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में से सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप तो ऐसा होगा जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, वो तो बन गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। और बच गए जितने भी और फंक्शनल ग्रुप, दिस ऑल अदर आर दी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और आल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट और आल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स बन जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वर्ड रूट क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था? टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ द कार्बोनेटम इन द प्रिंसिपल चेन। प्राइमरी सफिक्स ने क्या बताया? इट टेल्स वेदर द चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट और नॉट। सेकेंडरी सफिक्स ने क्या बताया? इट टेल्स वेदर, इट टेल्स अबाउट द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? वेदर द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अबाउट द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल चेन, जो प्रिंसिपल चेन के ऊपर अटैच है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। आप ये देखें, ये कोई स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने, इसका नाम बताएं क्या होना चाहिए? बोलो प्रिंसिपल चेन कौन? एक ही तो चेन है, ये तो बड़ा सिंपल कंपाउंड है, इसमें 3 ही कार्बन है, तो बोलो क्या बोलेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो वर्ड रूट बोलो कौन हो गया इसमें? प्रोप। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, पूरा नाम ना पूछ के ऐसे पूछ लें, बताओ ये जो गिवन स्ट्रक्चर इसमें वर्ड रूट कौन है, तो आपको आंसर सिर्फ लिखना है प्रोप, आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद प्रोप हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया एएनई। एएनई क्या है? पेपर में पूछ लें आपसे, एग्जाम में पूछ लें, व्हाट इज एएनई हियर, वो क्या है? तो आप आंसर लिखेंगे एएनई हियर इज प्राइमरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स है। तो नेम क्या हो गया इसका? प्रोपेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गई, देखो इसमें सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन को ढूंढना, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल चेन, वेयर इज द प्रिंसिपल चेन? देखो ये आपकी प्रिंसिपल चेन बन गई, देखो ये दैट इज द प्रिंसिपल चेन, जिसके अंदर आपके 4 कार्बन एटम हो गए। तो इसके अंदर 4 है तो हमने ब्यूट वर्ड यूज कर दिया, तो वर्ड रूट तो ब्यूट बन गया। अब इसमें नंबरिंग करेंगे लोवेस्ट सम रूल को यूज करते हुए, 1 2 3 एंड द 4। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो ये तो ब्यूट हो गया, बोलो कार्बन की जो लंबी चेन है उसके अंदर कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन आप लगा देंगे, ब्यूटेन बन गया। अब क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स है? नहीं, इसमें तो कोई भी प्राइमरी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्या जो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन थी, जो प्रिंसिपल चेन है, क्या वो साइक्लिक है? नहीं, तो साइक्लो वर्ड भी यूज नहीं करेंगे, मींस प्राइमरी प्रीफिक्स भी यूज नहीं करना। उसके बाद बताएं क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? यस, सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, दैट इज द CH3। अभी हमने अल्काइल ग्रुप्स के बारे में आपको बताया था, CH3 इज ए ग्रुप, इसमें एक कार्बन है तो मिथ, और ग्रुप के आगे YL लगाएंगे, सो दैट इज अ मिथाइल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट मिथाइल? दैट इज द पोजीशन नंबर 2। तो मिथाइल लिखें और उसकी पोजीशन उससे पहले लिखें और बीच में क्या लगा दें? आप डैश लगा देंगे, 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन, दैट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखो ये स्ट्रक्चर हमने आपके सामने ड्रा की, इसमें हमने प्रिंसिपल चेन भी निकाल दी, 1 2 3 4 5 6, देखो नंबरिंग कर दी फ्रॉम द बोथ साइड। अब हमने राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग कर दी, लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबरिंग कर दी। प्रिंसिपल चेन के ऊपर जो CH3 ग्रुप लगा हुआ था ग्रीन कलर से, हमने उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट भी लिख दिया। अब एक नंबरिंग करेक्ट है, एक रॉन्ग है, तो कौन सी रॉन्ग कौन सी करेक्ट, ऐसा हमने क्यों लिखा? ऊपर वाली साइड में मैंने लिख दिया करेक्ट नंबरिंग, नीचे वाली साइड से अगर हम नंबरिंग करें तो वो रॉन्ग नंबरिंग है, ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि अगर हम
और इसके अंदर टोटल कार्बन एटम बोलो कितने हैं? टोटल कार्बन एटम तो आपके 6 हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 6 है तो बोलो हेक्स वर्ड यूज करेंगे, हेप्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। बोलो क्या वर्ड यूज करेंगे? आपके हेक्स, हेक्स लगा देंगे आप इसमें। तो हेक्सेन तो हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें? अब नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े ध्यान से देखें। अगर आप ऊपर की साइड से नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे प्रेजेंट है? एट पोजीशन नंबर 2। अगर आप नीचे वाली साइड से नंबरिंग करें तो बोलो कहां पे प्रेजेंट है? पोजीशन नंबर 5। तो लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है? सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर देना है? लोवेस्ट नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को। इसलिए जो अपर नंबरिंग है वो आपकी करेक्ट नंबरिंग है, और जो नीचे वाली नंबरिंग है वो आपकी रॉन्ग नंबरिंग है। तो नीचे वाली नंबरिंग आपको इधर से नहीं करनी। तो करेक्ट नंबरिंग क्या हो गई? 2 के ऊपर है। तो बोलो जो हेक्सेन है उससे पहले क्या लिखेंगे? मिथाइल इज अ ग्रुप, और कहां पे प्रेजेंट है वो? पोजीशन नंबर 2 पे, सो कॉल्ड एज 2 मिथाइल हेक्सेन। बोलो नाम इसका क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल हेक्सेन। हेक्स लिखेंगे आप, ये हेप्टेन को करेक्ट कर देंगे, हेक्सेन है ये आपका। तो 2 मिथाइल हेक्सेन। तो आपने इसमें किस चीज का ध्यान रखा? यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखा कि जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो जो पेरेंट एल्केन था जैसे हेक्सेन, उससे पहले आप लिखते हैं, उसके बाद उसकी पोजीशन भी आप लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट की, और बीच में आप डैश भी लगा देते हैं, जैसे 2 डैश मिथाइल हेक्सेन, 2 डैश मिथाइल हेक्सेन आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। आप इसमें देखें, बोलो हमने प्रिंसिपल चेन भी दिखा दी, दैट इज द करेक्ट प्रिंसिपल चेन, क्योंकि दैट इज द लॉन्गेस्ट कार्बोनेटम चेन। अब इसके ऊपर हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। अगर हम ऐसे नंबरिंग करें तो बोलो लोअर पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट की? देखो ये नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट है, ये नंबर 4 पे प्रेजेंट है। सो 2 + 4 = 6 मींस सम ऑफ लोकेंट। लोकेंट मींस द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट की, आप उसे लोकेंट कहते हैं। तो व्हाट इज द सम ऑफ लोकेंट? 2 + 4 = 6। अब हम नंबरिंग करते हैं नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7। सो नाउ व्हाट इज द पोजीशन? पोजीशन 4 एंड पोजीशन नंबर 6 अगर नीचे से नंबरिंग करें। सो व्हाट इज द सम ऑफ लोकेंट? 4 + 6 = 10। लोवेस्ट सम रूल ने क्या कहा था? द सम ऑफ द लोकेंट शुड बी मिनिमम। तो सम ऑफ लोकेंट क्या होना चाहिए आपका? मिनिमम। सो व्हिच वन इज द करेक्ट नंबरिंग? अपर वन इज द करेक्ट नंबरिंग, लोअर वन इज द रॉन्ग नंबरिंग, वो गलत नंबरिंग है। अब इसका आइपेक नेम बताएं। टोटल कार्बन कितने हैं प्रिंसिपल चेन में? 7, सो कॉल्ड एज हेप्टेन। हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दी सब्स्टिट्यूएंट्स? करेक्ट नंबरिंग कौन सी थी? करेक्ट नंबरिंग थी आपकी अपर। तो वहां पे कौन कौन प्रेजेंट है? मिथाइल है, कहां पे? 2, और कहां पे? 4 पे। तो आपके जो सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा आ जाए, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा हो, तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं? जैसे CH3 2 है तो डाई यूज करेंगे, CH3 अगर 3 होते तो ट्राई वर्ड यूज करते। तो अब इनको कहेंगे डाई मिथाइल। बोलो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, बिकॉज द टू सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट हियर एंड दीज टू सब्स्टिट्यूएंट हियर आर द मिथाइल, so called as the dimethyl. Now what are the position of these two methyl group? Position number 2, position number 4। तो जो पोजीशन लिखेंगे आप डाइमिथाइल से पहले, तो 2,4 लिखेंगे। तो जो आपके न्यूमरल वैल्यू उनके बीच में कोमा लगा देंगे, 2,4, उसके बाद डैश लगाएंगे। अब देखें, देखो 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन इज द नेम। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि अगले आने वाले एग्जांपल में आप उस चीज को देख पाएंगे कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका जब आप नंबरिंग करते हैं, उसकी जब नेमिंग लिखते हैं, उनका जब नाम लिखते हैं वर्ड रूट से पहले, तो उनको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे आप? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। लेकिन उससे पहले लोवेस्ट सम रूल को जरूर ध्यान रखना है। लोवेस्ट सम रूल को भी देखेंगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब हम देखते हैं तो उसके दौरान जो हम डाई ट्राई वर्ड यूज लगाते हैं, इनको नहीं देखना, एक्चुअल नेम देखना है। जैसे मिथाइल का एक्चुअल नेम एम से शुरू होता है, मिथाइल का एम से, मिथाइल एम से। हमने जो अभी लिखा डाई मिथाइल, तो इसका नाम डी से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो हमने डाई इसलिए लगा दिया बिकॉज दीज CH3 ग्रुप्स आर 2 इन नंबर, क्योंकि संख्या में 2 थे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे, अगले एग्जाम्पल में अभी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अब आप। ये देखो सेम कंपाउंड की हमने 2 बार स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, ये देखने के लिए कि क्या आप अच्छे से ये ढूंढ पाते हैं कि विच वन इज द प्रिंसिपल चेन। तो आप बड़े ध्यान से देखो, प्रिंसिपल चेन देखो क्या क्या पॉसिबल है। एक तो ये चेन पॉसिबल हो सकती है, ये एक ऐसी चेन हमने बना दी प्रिंसिपल चेन जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए, एक तो CH3 मिथाइल जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर में हमने दिखाया, एक इथाइल CH2 CH3। सो दैट इज द प्रिंसिपल चेन जिसमें हमने नंबरिंग भी कर दी, 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर दी। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आपको दिख गए, एक तो CH3 पोजीशन नंबर 5 पे है, और एक इथाइल ग्रुप CH2 CH3 पोजीशन नंबर 4 के ऊपर है। तो पोजीशन नंबर 5 पे बोलो कौन है आपका? CH3। पोजीशन नंबर 4 पे बोलो आपका कौन है? आपका इथाइल ग्रुप।
अब हम देखते हैं कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रिंसिपल चेन को ढूंढने की। देखो सेकंड वन ये हो सकती है। आप नीचे देखें, देखो ये हमने बना दी नीचे वाले कंपाउंड के अंदर, स्टेट चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 और एक ही सब्स्टिट्यूएंट बन गया इतना बड़ा। और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। बोलो कौन है आपका? आइसोप्रोपाइल। क्योंकि आइसोप्रोपाइल कौन है? देखो 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, और इसकी नंबरिंग करें देखो 1 2, तो इसमें क्या दिख रहा है? टू सेम ग्रुप, टू CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम कार्बन एटम। तो बोलो ये कौन बन गया आपका? ये आपका बन गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। लेकिन अब देयर इज ए रूल, एक रूल है। क्या है कि देखो ऊपर वाले एक सेम कंपाउंड की जो हमने दो स्ट्रक्चर ड्रा की हैं, एक ऊपर एक नीचे आपको दिख रही है, दोनों के अंदर लॉन्गेस्ट चेन बोलो कितने कार्बन की बनी? 6 कार्बन की। ऊपर वाली स्ट्रक्चर में बोलो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 6। नीचे वाले में भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मींस व्हेन द टू चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब दो प्रिंसिपल चेन पॉसिबल हो और दोनों सेम लेंथ की हो, फिर हम किसको कहें फिर प्रिंसिपल चेन? then that chain will be the principal chain which contain more number of substituents, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा हो। तो ऊपर वाला जो कंपाउंड जो हमने बना रखी, ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर, अगर हम उसको प्रिंसिपल चेन माने, उसमें दो दो सब्स्टिट्यूएंट बन गए। बोलो कौन? एक तो मिथाइल बन गया और दूसरा कौन बन गया? बोलो आपका इथाइल। लेकिन नीचे वाली प्रिंसिपल चेन को अगर हम ठीक मानते तो बोलो उसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट बने? एक ही बना उसमें, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप। तो कौन सी प्रिंसिपल चेन करेक्ट है? अपर वन, ऊपर वाली ठीक है। क्योंकि when the two chains are of equal length, then that chain will be the principal chain which contains the more number of substituents, more number of side chain। अब हम इसका IPAC नेम लिखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी, बोलो क्या? करेक्ट प्रिंसिपल चेन हो गई। अब उसके बाद और नीचे वाली बोलो क्या हो गई? हमारी रॉन्ग प्रिंसिपल चेन हो गई। अब हम जो हमारी करेक्ट प्रिंसिपल चेन थी, हमने वो स्ट्रक्चर अब रख ली है, देखो जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट थे। अब इस करेक्ट प्रिंसिपल चेन में बोलो कितने कार्बन है? 6 है। तो देखो मैंने हेक्स लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख दिया, देखो हेक्सेन। अब बात आ गई कि अब नंबरिंग कौन सी ठीक है? नंबरिंग तो दो डायरेक्शन से हो सकती है ना, लेफ्ट साइड से भी 1 2 3 4 5 6 जैसे मैंने कर दी। तो क्या ये ठीक है? या दूसरी नंबरिंग भी तो हो सकती है। अब हम देखेंगे लोएस्ट सम रूल, जो अभी अभी मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6, इसमें बताएं लोएस्ट सम रूल क्या है? 4। एक सब्स्टिट्यूएंट तो इथाइल ग्रुप तो नंबर 4 के ऊपर है, और जो दूसरा है मिथाइल ग्रुप वो नंबर 5 पे है। तो व्हाट इज द सम ऑफ लोकेंट? 4 + 5 = 9। अब हम नंबरिंग करते हैं दूसरी साइड से, देखो 1 2 3 4 5 and 6। now what is the position of substituent here? वन सब्स्टिट्यूएंट CH3 तो प्रेजेंट है C2 पोजीशन के ऊपर, देखो C2 के ऊपर, और सेकंड वन कहां पे? बोलो 3 पोजीशन के ऊपर, इथाइल ग्रुप हो गया। तो नाउ व्हाट इज द सम ऑफ लोकेंट? 2 + 3 = 5। तो वेयर द सम ऑफ लोकेंट इज मिनिमम? कहां पे सम ऑफ लोकेंट सबसे कम आया? जब हमने नंबरिंग, अब जो सेकंड वाली नंबरिंग की है, जो नीचे से हमने नंबरिंग की है, तो दैट इज द करेक्ट नंबरिंग। और ऊपर वाली जो पहले नंबरिंग की थी, जहां पे 4 + 5 = 9 आंसर आया था, वो हमारी रॉन्ग नंबरिंग है। तो अब जो हमारी करेक्ट नंबरिंग थी, अब हम इसका नाम लिख देते हैं। बोलो करेक्ट नंबरिंग वाली साइड से अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां प्रेजेंट है। एक तो मिथाइल है, और एक बोलो कौन है आपका? इथाइल है। तो आप ये बताएं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, मिथाइल या इथाइल? देखो इथाइल का E है, मिथाइल का M है, तो E पहले आता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? बोलो सबसे पहले हम किसका नंबरिंग करेंगे? यहाँ पे 1 2 3। बोलो 3 के ऊपर तो कौन था? इथाइल। देखो 3 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम आ गया। तो जो आपका वर्ड रूट बोलो इसमें कौन था? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स बोलो कौन है? ANE। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है? दो है सब्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से? एक मिथाइल एक इथाइल। अब कैसे लिखा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम लिखे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आया? इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल में M बाद में आता है। तो इथाइल का नाम पहले लिखा, मिथाइल का बाद में। तो पहले इथाइल लिखा, इथाइल की फिर पोजीशन भी लिखी, क्योंकि वो 3 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। तो 3 और इथाइल के बीच में आपको डैश भी लगाना है। उसके बाद जो 2 लिखा, 2 के आगे पीछे, क्योंकि आगे पीछे दोनों साइड में क्या है? उसके अल्फाबेट है, तो दोनों साइड में आपने हाइफन, आपने डैश लगाया। तो कंप्लीट नेम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो ये प्रिंसिपल चेन हमने ले ली, और ये करेक्ट एक ही प्रिंसिपल चेन ये हमारी बन गई। क्योंकि आप कोई दूसरी बनाएंगे, नीचे की तरफ नंबरिंग करते, देखो ऐसे 1 2 3 4 5, देखो इधर नीचे करते 6 और 7, तो भी एक ही बात थी, क्योंकि इथाइल है, आगे भी वही CH2CH3 है, तो एक ही बात होती है आपकी। तो अब हम ये देखते हैं कि अब इसका करेक्ट नेम कैसे हम लिखें। तो यहां पर भी एक रूल आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लोवेस्ट सम रूल, अगर हम ऊपर की साइड से नंबरिंग करें तो देखो क्या नंबरिंग बन जाएगी? बताओ शहबाज, क्या नंबरिंग बनेगी आपकी? एक तो ग्रुप आपका अटैच है इथाइल, ऊपर की साइड से देखो नंबरिंग की, तो एक तो 3 पोजीशन के ऊपर है, देखो ये 3 पोजीशन के ऊपर कौन है? इथाइल।
एक 5 पोजीशन के ऊपर बोलो कौन है आपका, ये देखो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 + 5 = 8। ऊपर से हमने नंबरिंग की तो आंसर बोलो क्या है, सम ऑफ लोकेंट कितना आया 8। अब हम नीचे से नंबरिंग करते हैं, नीचे से नंबरिंग की तो बोलो आंसर क्या आ गया आपका दोबारा से, देखो एक तो 3 के ऊपर मिथाइल और ये 5 के ऊपर बोलो कौन है, ये देखो मिथाइल और इथाइल आ गया, 3 पे मिथाइल और 5 पे इथाइल, सो आंसर रिमेन सेम, 3 + 5 = 8। तो आप नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन से करें, लेफ्ट और राइट, ऊपर से करें नीचे से करें, तो हमेशा आंसर 8 ही आता है। तो अब कौन सी प्रिंसिपल चेन ठीक है, हम किधर से नंबरिंग करें, प्रिंसिपल चेन तो एक ही है, लेकिन अब हम नंबरिंग किधर से करें, ऊपर की डायरेक्शन से करें या नीचे की डायरेक्शन से करें। तो उसके लिए एक बड़ी बेसिक सा रूल आ जाता है, वो रूल ये है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो और वो सेम पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो, जैसे आपके मिथाइल और इथाइल को आप देखें, वी हैव द टू डिफरेंट alkyl groups which are present at the same position from the two end of the principal chain। अगर इस एंड से देखें मिथाइल की पोजीशन क्या है, 3 है, देखो अगर हम इधर से देखते हैं, अगर दूसरे एंड से देखें देखो इधर से, तो इथाइल की पोजीशन क्या है, उसकी भी देखो 3 है। तो फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ द प्रिंसिपल चेन के जो दो एंड हैं, दोनों एंड से अगर हम नंबरिंग शुरू करें, दोनों एंड से, एक एंड से शुरू किया 1 2 3 तो मिथाइल को 3 नंबर मिल गया, दूसरे एंड से शुरू करते हैं 1 2 3 तो इथाइल को नंबर 3 मिल गया। फिर हम क्या करें, तो उस वक्त रूल ये कहता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो नंबरिंग should be done in such a way that the substituent which comes first in the alphabetical order which get the lowest number। तो छोटा नंबर अब किसको दे, इथाइल को दे या मिथाइल को दे, तो आप देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, कौन आता है, इथाइल, तो अब इथाइल को आप छोटा नंबर देंगे। तो बोलो किस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे आप, जो ऊपर वाली डायरेक्शन थी, देखो दैट इज द करेक्ट नंबरिंग, आप इधर से नंबरिंग कर देंगे और नीचे वाली नंबरिंग आप नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आपको फॉलो करना पड़ा। तो टोटल कार्बन बोलो कितने हो गए आपके प्रिंसिपल चेन के अंदर, टोटल कार्बन आर 7 इन नंबर, तो हेप्ट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है कार्बन चेन के अंदर तो एन लिख दिया। उसके बाद अब देखो पोजीशन तो सिंप्लीफाई हो ही गई थी, तो इथाइल को 3 पोजीशन देनी थी, मिथाइल को 5, सो द 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इज द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ दैट गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेते हैं। अब इस अगले एग्जांपल में बिल्कुल उसी टाइप से देखें, वही आपके रूल आ जाएंगे जो पीछे हमने बताए थे। देखो हमने अगर ऊपर की साइड से नंबरिंग करें तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ऊपर से नंबरिंग करें तो देखो ये नंबर 3 के ऊपर बोलो कौन है, ये एक इथाइल और ये दूसरा इथाइल, पोजीशन नंबर 3 पे है। ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं, अब आप ये ध्यान रखना 3 के ऊपर है 2 इथाइल, उसके बाद 5 के ऊपर है 2 मिथाइल, तो 3 + 3, 3 क्यों, पहले इथाइल के लिए 3 क्यों, दूसरे इथाइल के लिए 5, 1 मिथाइल के लिए 5, अगले मिथाइल के लिए, सो द टोटल सम इज 16, सम ऑफ लोकेंट इज 16 अगर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं। अब हम करेंगे नंबरिंग इसकी नीचे की डायरेक्शन से, मींस हम करेंगे राइट टू लेफ्ट। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट टू लेफ्ट। अब इसमें देखें राइट टू लेफ्ट किया तो देखो नंबर 3 के ऊपर बोलो कौन है, ये मिथाइल नंबर 3 के ऊपर है, दूसरा मिथाइल वो भी नंबर 3 के ऊपर है। देखो नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, अब ध्यान रखना राइट टू लेफ्ट, कोई इधर से ये, तो 3 + 3 हो गया। उसके बाद 5 के ऊपर बोलो कौन है, ये 5 पोजीशन के ऊपर अटैच कौन है, बोलो आपका इथाइल, दूसरा भी कहां पे है, 5 पोजीशन के ऊपर है। तो क्या आ गया, 3 + 3 + 5 + 5 दैट इज 16, फिर से 16 आंसर आ गया। तो अब हम किधर से करें नंबरिंग, तो फिर वही दो बातें आ जाती जो भी आपको बताया गया था कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, उनकी पोजीशन सेम हो फ्रॉम द टू एंड ऑफ द प्रिंसिपल चेन, तो हमेशा ही नंबरिंग उस एंड से करें जहां पे जिसको आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है, इथाइल पहले आता है मिथाइल बाद में, तो इसलिए आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट नंबरिंग बोलो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी ऊपर वाली जो नंबरिंग थी वो आपकी करेक्ट नंबरिंग है, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन से करते हैं तो इथाइल का ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलता है, दैट इज 3, और मिथाइल को 5 पोजीशन मिल जाएगी। तो अब इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल चेन में टोटल 7 कार्बन है, सो द हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन हेप्टेन। अब पोजीशन लिखेंगे क्योंकि इथाइल है 3,3 इथाइल, लेकिन इथाइल 2 है तो डाई यूज करेंगे आप, तो 3,3 डैश डाई इथाइल, फिर डैश 5,5 डैश डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल 2 है तो इसलिए डाई लगाया। दोनों मिथाइल की पोजीशन लिखनी जरूरी है, दोनों मिथाइल 5 पोजीशन पे हैं तो 5,5 दोनों मिथाइल की पोजीशन अलग अलग लिखनी है, दोनों इथाइल की पोजीशन हमें अलग अलग लिखनी है, तो इसलिए नाम क्या बन गया 3,3 डाइथाइल डैश 5,5 डैश डाइमिथाइल हेप्टेन इज द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब नेक्स्ट को देखें आप,
आप इसमें देखें लंबी चेन बोलो कौन सी हो गई आपकी, ये सबसे लंबी चेन है, 9 कार्बन एटम है, तो नोनेन कहेंगे इसको, बोलो क्या कहेंगे, नोनेन। प्रिंसिपल चेन के अंदर 9 कार्बन एटम है। अब उसके बाद ये एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है, लोएस्ट सम रूल देखो, किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग कर दे इसको 5 पोजीशन ही मिल रही है, आप देखें 5 और ऊपर से भी देखो 5। आप चाहे ऊपर की डायरेक्शन से ऐसे नंबरिंग करें तो 5 के ऊपर है इथाइल, आप नीचे की डायरेक्शन से नंबरिंग करें तो 5 के ऊपर है इथाइल, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल नोनेन। बोलो नाम क्या हो गया इसका, 5 इथाइल नोनेन। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, देखो जो इथाइल ग्रुप था, इथाइल के अंदर हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, जो इथाइल था उसके अंदर हमने ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया CH3। नाउ इट इज अ बिग ग्रुप, नाउ इट इज द बिग ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब भी आप नाम लिखते हैं तो उसका नाम हमेशा ही स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपका जो बिगर सब्स्टिट्यूएंट जो बन जाता है इसके अंदर खुद की अलग से एपेक नंबरिंग की जाती है, देखो कुछ इस टाइप से। इसके अंदर देखो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन देखी, देखो ये ब्लू कलर से जो दिखाया 2 ही कार्बन हो गए, 1 2 नंबरिंग की, नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश, किसको 1 डैश देंगे, जो प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन का जो कार्बन एटम नंबर 5 है उसी के ऊपर तो ये अटैच है पूरा ग्रुप, जो 5 कार्बन के ऊपर जो पहला कार्बन अटैच है इस पूरे बड़े सब्स्टिट्यूएंट का, उसको तो हम कहेंगे 1 डैश, और अगले कार्बन को क्या कहेंगे 2 डैश। अगर ये CH3 ना होता, मान लीजिए ये CH3 ना होता तो क्या होता, CH3 नहीं होता तो इसका नाम वही होता जो लेफ्ट साइड में हमने कंपाउंड दिखाया था, 5 इथाइल नोनेन। अब जो 5 इथाइल नोनेन हमने लिखा है, अब क्या हो गया, अब ये जो इथाइल है, देखो ये जो इथाइल है 5 के ऊपर जो इथाइल था, अब इस इथाइल के अंदर ही कौन सा ग्रुप लग गया, इसके अंदर लग गया ये मिथाइल। और कहां पे लगा है बोलो, ये 1 डैश पोजीशन के ऊपर लगा है, तो आधा नाम तो पहले से लिखा ही हुआ है ये 5 इथाइल नोनेन, बस एक एंट्री ही तो करनी है, वो क्या, कि जो इथाइल है उस इथाइल के अंदर 1 डैश पोजीशन के ऊपर मिथाइल लग गया, तो वो आप लिख दें। तो ये और बातें तो हमने आपको बता ही दी सारी। तो देखो हमने क्या लिखा, ये तो वही चीज मैंने लिख के छोड़ दी, देखो 5 इथाइल नोनेन, देखो 5 लिखा, देखो जो पहले लिख रखा था हमने 5 फिर डैश फिर इथाइल नोनेन, ब्रैकेट में लिख दिया अब हमने इथाइल। इथाइल से पहले अब क्या लिखने वाले हैं, इथाइल से पहले लिखने वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो इथाइल के अंदर प्रेजेंट है, बोलो कौन प्रेजेंट है, वो मिथाइल है, और कहां पे प्रेजेंट है 1 डैश पे, तो हम क्या लिख देंगे, देखो 1 डैश मिथाइल, इथाइल से पहले हमने क्या लिख दिया 1 डैश मिथाइल। और जो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 1 डैश मिथाइल इथाइल, इसको हमेशा ही स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, बोलो किस में लिखेंगे, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज ऑलवेज बी रिटन इन द स्मॉल ब्रैकेट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, अगली जो स्ट्रक्चर आई, देखो अब हमने इसमें क्या किया, देखो जो अभी अभी हमने नाम सीखा ना, इसलिए हम इन सीक्वेंस आपको बता रहे हैं। अगली जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसी ही, देखो पहला नाम आपने क्या सीखा अभी तक 5 इथाइल नोनेन, उसके बाद क्या सीख लिया, जो सब्स्टिट्यूएंट था सिंपल सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, उसमें आपने ये CH3 ग्रुप लगा दिया था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, आपकी बार दो दो CH3 ग्रुप लगा दिए, देखो दो दो CH3, तो बोलो कॉमन नाम तो वही है, देखो 5 फिर ब्रैकेट में इथाइल और नोनेन हमने लिख दिया। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है दो कौन कौन से हैं, 1 डैश के ऊपर कौन मिथाइल, 1 डैश पे फिर कौन एक और मिथाइल, तो 1 डैश 2 बार लिखेंगे, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल लिखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम, बोलो क्या नाम बन गया 5 डैश फिर ब्रैकेट में आ गया पूरा नाम इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, बोलो क्या है इथाइल, जो ब्लू कलर से लिखा, इथाइल से पहले क्या लिखे ये सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन है दोनों CH3, तो इसलिए हमने क्या लिखा डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है, इनकी पोजीशन लिखी, दोनों कहां है 1 डैश पे, तो 1 डैश कोमा 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, इसको ब्रैकेट में लिखना है, सो दैट इज द कंप्लीट नेम, तो इसका ये क्या बन गया बोलो कंप्लीट नेम बन गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बड़ी सिंपल चीजें, आपको इंग्लिश की जो अल्फाबेट है आपके ए से लेके जेड तक, हर एक का आईपैक नेम आप लिख सकते हैं, देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ए, अगर इस ए के अंदर अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आईपैक नंबरिंग बोलो कैसे करेंगे, देखो ये जो आपकी प्रिंसिपल चेन कौन है, देखो ये जो रिंग बन गया यहाँ पे, तो देखो रिंग, प्रिंसिपल चेन एक रिंग की फॉर्म में है, और इसमें कितने कार्बन है, देखो 1 2 एंड 3, और जो कुछ भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे बोलो कौन होता है, ये तो CH3 ग्रुप है। तो बताओ अब क्या लिखें, वर्ड रूट, प्रिंसिपल चेन कौन है, प्रिंसिपल चेन एक साइक्लिक चेन है, उसमें कितने कार्बन है 3 कार्बन है, देखो ट्रायंगल की फॉर्म में, ट्रायंगल के अंदर 3 कार्बन है, बोलो क्या लिखेंगे, आपका बन गया प्रोपेन, देखो प्रोप और एन हो गया ना प्रोपेन, साइक्लो क्यों लगाया, बिकॉज द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक। उससे बाद सब्स्टिट्यूएंट कौन प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पे कौन था मिथाइल, 2 पे कौन था मिथाइल, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो बोलो क्या नाम बन गया 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन।
तो ये इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है आपका, ये उसका आपने नाम लिख दिया। बोलो क्या नाम हो गया इसका? 1,2 डैश डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने एग्जाम में ऐसे दी जा सकती है, तो आप इसका नाम लिखना आपको आना चाहिए। अब बी लिखा, देखो हमने बी। बी तो वैसे देखो ये होता है ना, स्टेप से देखो आप बी लिखते हो, इसको हमने थोड़ा स्ट्रेट लाइनों की फॉर्म में लिखा। तो अब इसमें देखो क्या आ गए, नाउ इट हैज 2 रिंग्स, 2 रिंग है। देखो साइक्लोब्यूटेन वाला एक मींस 2 रिंग है, उनके बीच में क्या कोई कॉमन कार्बन एटम है? कोई भी कॉमन कार्बन एटम नहीं है इनके बीच में। तो जब कोई भी कॉमन कार्बन एटम नहीं है इनके बीच में, तो आपने क्या देखा, 2 रिंग के बीच में कोई कॉमन कार्बन एटम है या नहीं है? फिर से ध्यान से देखो, एक जो रिंग है, इस रिंग का देखो ये कार्बन कॉमन तो है, ये कार्बन देखो कॉमन तो है। तो ये जो 2 रिंग है, जो आपके रेक्टेंगल स्क्वायर की फॉर्म में, 1 स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 2 कार्बन कॉमन, जो मैंने रेड डॉट से दिखा दिया, तो इन्हें कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बोलो कैसे कंपाउंड है? दीज आर दी बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब जो बाईसाइक्लो कंपाउंड, इन्हें कहते हैं ब्रिज कार्बन एटम। जो मैंने डॉट से दिखाया, दीज आर दी कार्बन, दीज आर दी ब्रिज कार्बन, जो 2 रिंग को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये ब्रिज कार्बन है। अब ये बताओ, एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन एटम के ऊपर जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। एक तो बिल्कुल डायरेक्ट चले जाओ, देखो इस रास्ते से, तो इस रास्ते से जाते हैं, क्या बीच में कोई कार्बन आया? कोई कार्बन नहीं आया। चलो अब हम ऊपर से चलते हैं, देखो इस डायरेक्शन से, इधर से चले, बोलो कितने कार्बन आए? देखो एक कार्बन और एक 2 कार्बन, देखो 2 कार्बन आ गए। अब नीचे वाले रास्ते से चलो, देखो एक कार्बन आया, 2 कार्बन आ गए, नीचे वाले रास्ते से जाते हैं, तो आपके 2,2 हमने देखो इस टाइप से लिख दिया, और ये ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। सो ये क्या है? ब्रिज कार्बन एटम के बीच में टोटल कार्बन कितने थे? तो बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं? बाईसाइक्लो लिख दो पहले, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखो कि 2 ब्रिज कार्बन एटम के बीच में, एक ब्रिज कार्बन एटम से दूसरे ब्रिज कार्बन एटम की तरफ जब हम जाते हैं, तो जितने भी रूट्स हैं, उन सभी रूट में 2 ब्रिज कार्बन एटम के बीच में कितने इंटरमीडिएट कार्बन आए, कितने कार्बन बीच में आए? तो आपने देखा 3 रास्ते हैं आपके, देयर आर 3 पॉसिबल पाथ टू मूव फ्रॉम वन ब्रिज कार्बन टू अनदर ब्रिज कार्बन एटम। तो बोलो पहले रास्ते से गए बिल्कुल डायरेक्ट, तो उसमें 0 थे, छोटी वैल्यू सबसे लास्ट में लिखते हैं। बचे हुए 2 रास्तों में 2 थे, इसलिए हमने क्या लिखा, 2,2,0 स्मॉल ब्रैकेट में। अब टोटल कार्बन गिन लो, बोलो टोटल कार्बन कितने हैं इसके अंदर? टोटल कार्बन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट हमें किस चीज की जानकारी देते हैं? कार्बन की। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, टोटल तो 6 कार्बन है, तो हेक्सेन लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ANE लिखा था। सो दैट इज द नेम, ये इसका नाम हो गया। तो जो बी है इन अल्फाबेट के अंदर, उसका नाम क्या होता है? बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन, या कई बार डॉट भी लगा देते हैं, 2.2.0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सी को देखते हैं। सी के अंदर तो कोई नहीं, ये तो स्ट्रेट चेन है आपकी बिल्कुल। बोलो टोटल कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो ANE। अब हम चलते हैं आगे, बोलो कहां पे चलेंगे? अब हम चलते हैं यहाँ पे डी की तरफ। ये भी सिंपल सा कंपाउंड है, एक रिंग कंपाउंड है, 4 कार्बन है इसके अंदर। बोलो टोटल कार्बन इसके अंदर कितने? 1, 2, 3 एंड 4। तो बोलो क्या लिखेंगे? और जो प्रिंसिपल चेन एक ही तो है, और ये रिंग की फॉर्म के अंदर है, तो नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो ANE, रिंग की फॉर्म में है प्रिंसिपल चेन, तो साइक्लो लगा देंगे, तो नेम इज साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट लेते हैं, ये ई आ गया। डी के बाद बोलो कौन आ गया आपका? ई। इंग्लिश अल्फाबेट में ई आ गया। अब इसमें बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। और 3 के ऊपर बोलो कौन लग गया? ये मिथाइल ग्रुप। तो वो 5 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? पेंटेन। 3 के ऊपर मिथाइल, तो नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो गया इसका? 3 मिथाइल पेंटेन। ई के बाद क्या आता है? एफ। अब इसकी नंबरिंग करो, देखो 1, 2, 3 एंड 4। ये ठीक है? नो, ये ठीक नहीं है, ये गलत नंबरिंग है। क्योंकि इससे क्या हुआ, जो सब्स्टिट्यूएंट था हमारा, देखो CH3, इसको कौन सी पोजीशन मिली? 3 पोजीशन मिली है। सो दैट इज द रॉन्ग नंबरिंग। अब हम दूसरी साइड से देखो नंबरिंग करते हैं। अगर हम नंबरिंग ऐसे कर दें, देखो 1, 2, 3 एंड 4, अब क्या मिला? अब मिली पोजीशन नंबर 2, मिथाइल को पोजीशन नंबर 2 मिल गई, तो नाम हो गया ब्यूटेन। 4 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, तो ब्यूटेन, और 2 के ऊपर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो जी। जी के अंदर देखो टोटल कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो स्ट्रेट चेन है ये तो बिल्कुल। थोड़ी हमने फोल्ड करके लिखी है, तो हेप्टेन। एच के अंदर आप देखें टोटल कितने कार्बन है? अगर आप नंबरिंग करें, देखो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये कौन हो गया? बोलो ये आपका हो गया ब्यूटेन। और 2 के ऊपर बोलो कौन है? एक मिथाइल। 3 के ऊपर भी कौन है? एक मिथाइल।
तो क्या नाम बन गया, ब्यूटेन है, और 2 और 3 के ऊपर मिथाइल, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब आई को देखें, आई तो देखो एच जैसा ही है, जस्ट उल्टा करके लिखा है, सेम नेम, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आई के बाद क्या आया, जे। अगर आप इसकी नंबरिंग करें तो देखो कैसे करेंगे, कार्बन एटम नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो पेंटेन हो गया। 2 के ऊपर बोलो कौन अटैच है, यहाँ पे मिथाइल हो गया, तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। इसके बाद के आ गया, के की नंबरिंग देखो कैसे करेंगे, 1 2 3, 2 के ऊपर कौन है, मिथाइल, 2 के ऊपर कौन है, फिर से मिथाइल, बोलो नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। उसके बाद ये एल आ गया, एल में देखो 3 ही तो कार्बन है, कार्बन 1 2 एंड 3 स्टेट चेन है, तो सिंपल नेम इज प्रोपेन। एम, एम के अंदर भी देखो स्टेट चेन ही बनेगी, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन ही तो है स्टेट चेन में, तो आपका पेंटेन। एन में कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 एंड 4 ही कार्बन है, तो बोलो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। उसके बाद ओ, ओ वैसा हो गया जैसे हमने ऊपर डी बनाया था, इस बोलो कौन बन गया, साइक्लोब्यूटेन। ये पी हो गया। इसके अंदर क्या है, देखो अगर आप नंबरिंग करें, देखो 1 2 3 एंड 4, तो प्रिंसिपल चेन तो आपकी साइक्लिक हो गई, तो क्या बन गया, साइक्लिक प्रिंसिपल चेन के अंदर 4 कार्बन है तो ब्यूट, साइक्लिक है तो साइक्लो पहले लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड ही है तो एन, तो ब्यूट एन से पहले साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन। और इसे इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है पोजीशन नंबर 1 पे मिथाइल, तो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो ये पी आ गया। उसके बाद हम चलते हैं क्यू के ऊपर। क्यू के अंदर देखें क्या है, वही देखो उसी टाइप से जो आपकी प्रिंसिपल चेन बनेगी, 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूट एन हो गया, साइक्लिक है प्रिंसिपल चेन तो साइक्लोब्यूटेन हो गया, 1 के ऊपर मिथाइल है तो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब आर आ गया आपका, आर के ऊपर उसी टाइप से देखेंगे, देखो नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4, तो देखो जो प्रिंसिपल चेन है वो साइक्लिक है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट एन साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन। और 1 पोजीशन के ऊपर बोलो कौन है, एक मिथाइल और ये सेकंड मिथाइल, तो बोलो क्या हो गया, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद ये एस, ये तो सिंपल स्टेट चेन बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6 ही कार्बन है इसमें, तो हेक्सेन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ये टी, टी के अंदर देखो क्या है, 1 2 एंड 3, और ये आपका मिथाइल ग्रुप देखो लग गया यहाँ पे, तो 3 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, तो बोलो क्या बन गया, प्रोपेन, 2 के ऊपर मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसमें टोटल कितने कार्बन है, स्टेट चेन ही है ये तो, 1 2 3 एंड 4, तो ये ब्यूटेन हो गया। इसके अंदर भी स्टेट चेन है, 3 ही कार्बन है, 1 2 3 वी के अंदर, तो प्रोपेन हो गया। डब्ल्यू के अंदर स्टेट चेन है बिल्कुल, 1 2 3 4 और 5 ही कार्बन है, तो बोलो क्या बन गया, पेंटेन। अब एक्स है, इसके अंदर किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, ये प्रिंसिपल चेन बन गई, और दो दो मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच हो गए, तो बोलो नाम क्या हो गया, प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, और 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और वाई को देखें, इसमें नंबरिंग की हमने 1 2 एंड 3, और ये मिथाइल ग्रुप लग गया, बोलो क्या बन गया, प्रोपेन हो गई। प्रिंसिपल चेन के अंदर 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो गया, 2 के ऊपर मिथाइल तो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करके दे दें, ये वाई और टी को देखें, वाई और टी दोनों का नेम एक है, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम भी क्या था, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप बाद में ये भी जरूर चेकआउट करें अपनी कॉपी में सारी चीजें लिखने के बाद, कि वो कौन कौन से अल्फाबेट थे जिनका नाम एक जैसा आ गया, ऐसी स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा मिलेगी आपको एग्जाम में, स्ट्रक्चर को देख के आपको नाम लिखना होता है। अब जेड, ये भी स्टेट हो गया, 1 2 3 एंड 4, तो बोलो आप इसको क्या कहेंगे, दैट इज अ ब्यूटेन। तो इस टाइप से आपने सारे इंग्लिश के जो अल्फाबेट थे उन सभी के भी नंबरिंग की। ऐसे ही आप कोई भी पजलिंग गेम खेल सकते हैं, जैसे आप लिख दें, काउंटिंग लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक की, तो आप उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। देखो जैसे अगर मैं लिख दूं 1, देखो आपको लिख के दिखाते हैं, ये 1 हो गया, देखो ऐसे। अब इसमें कोई आपसे पूछे तो बोलो कैसे प्रिंसिपल चेन बनाएंगे, देखो 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे बोलो कौन हो गया, मिथाइल हो गया, तो बोलो इसका नाम क्या होगा, बताओ शाबाश। या ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग आपकी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो जो मिथाइल ग्रुप उसको पोजीशन नंबर 3 मिल रही है। अगर इसे रिवर्स देखो, अगर मैं नंबरिंग कर दूं, देखो ऐसे करके, देखो रिवर्स 1 2, ये 3 एंड 4, तो अब बोलो नंबर 2 के ऊपर कौन आ गया, आपका मिथाइल, बोलो क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये जो आपकी न्यूमरल वैल्यू है 1, ये उसका आपने आंसर लिख दिया।
अगर ऐसे ही मैं लिख दूं, देखो ये ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट, तो आप कोई भी अपनी घर पे जाके बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो ऐसे, देखो ऐसे कर दें या थोड़ा ऐसे कैसे भी डिजाइन करके दे दें। तो बोलो इसमें कितने कार्बन है, देखो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सेन। ऐसे 3 बना दें, देखो 1, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, ये 3 बना दिया हमने। तो बोलो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। तो आप इसे पेंटेन कह देंगे। ऐसे 4 बना दे, मान लीजिए, देखो हमने 4 बना दी, ये ऐसे 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 और ऐसे। तो ये क्या है, देखो हम इसकी नंबरिंग कहाँ से करें, हम इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4, लोएस्ट सम रूल को यूज करना है। तो यहाँ पे बोलो कौन अटैच हो गया, ये CH3 अटैच हो गया, देखो यहाँ पे। तो 4 कार्बन की चेन बन गई। तो बोलो ब्यूटेन हो गया, 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही 5 को अगर हम लिखे, देखो ऐसे करके 5 बन गया, ये तो S जैसा हो गया। उसके बाद मान लीजिए हम 6 को लिख देते हैं, ऐसे 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 करके, ऐसे 6 बना दें। बोलो अब क्या करेंगे, तो ये तो आपकी नंबरिंग होगी, देखो 1 2 3 एंड 4। तो ये बोलो कौन बन गया, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। साइक्लो है तो साइक्लोब्यूटेन। और जो ग्रुप लगा हुआ है ये कौन है, बोलो ये है CH2 CH3 इथाइल ग्रुप। तो बोलो क्या लिखेंगे, 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन। 6 हो गया, ऐसे मान लीजिए 7 लिख दे। कितने कार्बन हो गए, 1 2 एंड 3, मीन सिंपल प्रोपेन है। अगर 8 लिखें, 8 तो देखो वैसा ही हो गया जैसे हमने पहले भी लिखा था। जो ये बाईसाइक्लो जो कंपाउंड था हमारा, बाईसाइक्लो 220, बाईसाइक्लो 220 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, बाईसाइक्लो 220 साइक्लो हेक्सेन, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन इसका नाम है। अब 9 का अगर हम नाम लिखें, देखो 9 9 तो ऐसे होता है, देखो ऐसे। अब इसमें देखो उसी टाइप से ये आपकी प्रिंसिपल चेन बन गई, 1 2 3 एंड 4। बोलो क्या हो गया इसमें प्रिंसिपल चेन, 4 कार्बन है, रिंग की फॉर्म में है, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE ब्यूट एन, और साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन। और जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, बोलो ये कौन है, ये CH2, और इधर बोलो कौन है, ये CH3 हो गया। तो ये इथाइल ग्रुप बन गया, बोलो कौन बन गया, इथाइल। तो 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो इस टाइप से आप कोई भी यानी अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं आईपैक नेमिंग के लिए। ये था एल्केन से रिलेटेड, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए सिर्फ एल्केन के। आपको अगर कंप्लीट IUPAC नेमिंग अगर देखनी है बिल्कुल कंप्लीट, तो उसके लिए अलग से वीडियो है हमारी, जिसको आप पूरी को अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, कंप्लीट आईपैक नेमिंग है हमारी, आईपैक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम से। तो इसलिए आप सभी जितने भी हमारी जो नई नई जो वीडियो हम बनाते हैं, इन सभी को आप डेली अपने सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आज अभी हम ये जो वीडियो लेक्चर अभी मैंने तैयार किया, ये अभी हम जो अपलोड कर देंगे, आपको इसका पता ही नहीं चलेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। इसलिए ताकि हर लेक्चर का आपको फुल फायदा मिल सके, आप उसके बारे में जितना भी आपको पढ़ाया जाता है, आपकी नॉलेज अच्छे से अपग्रेड हो जाए, तो इसलिए आप सभी अपने सब्सक्राइब को जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें। So thank you, that all about the today's lecture on the alkanes, introduction, the IUPAC naming of the alkane. Thank you.